Greetings to everyone. Today we have Mr. Imran Khan sir, who is a dedicated naturalist and he has been working to protect our Mother Earth's precious ecosystem for past so many years. He has previously worked in the Wildlife Institute of India, and he's also running his homestay called Imran's Ranger Lodge, and we feel extremely privileged to have you here today, sir. Thank you. So let's start and know him better. Thank you so much, Kuhu. Thank you so much. And as you rightly introduced me, yes, I did my training from WII, but I did my master's in wildlife sciences from AMU Aligarh, which is one of the reputed universities and possibly the only university which had started for the first time 2 years master's degree in full-fledged master's degree in wildlife sciences, ecology, biology, conservation, management, and all that. And this university was actually created by Dr. Salim Ali, who's the father of Indian ornithology. So he had played a major role in establishing the university. So, how did your inspiration for wildlife came up from? Okay, so this is a very interesting question. As a young child, I used to accompany my grandfather and my grandfather's father, like my other grandfather, on these shikars. In olden days, people were very fond of doing hunting and all that. They used to hunt nilgai, which used to be a problem in the crop field, or maybe wild boars, or maybe, sambar and cheetah and all that. But that was the time the government of India also did not have much restrictions. We did not have the proper forest departments and so on. So I belong to a place called Rampur, which is not very far from here, just about maybe 70 kilometers from here. So we used to come to Sitabani, which used to be a hunting block at one point of time. So my grandfather used to get the permit for 6-7 days. So we used to stay, maybe shot one wild boar or something like that. We used to go back. So every time my grandfather used to lift the gun, so I used to pray to my Bhagwan, Ishwar, Allah, that he should miss his shot. He should not be able to kill anybody. So that was something, I don't know, it was God sent connection, which worked. And then my father encouraged me to spend more time in the forest. So with siblings, we had an old Belize Jeep and we used to come and camp in Sitabani. We used to make khichdi and to listen to all the bird calls and alarm calls by the animals and all that. Sitabani is a beautiful rest house right in the forest. So that's how my journey started in wildlife. Although there was no proper, course in wildlife sciences, but anyways, I was still doing my schools and my pre-university and then my university, my graduation. While I was doing my graduation, possibly in the last year, again, it was a God-sent connection. My university, for the first time, started a 2 years master's degree in wildlife sciences. I immediately jumped and my father helped me admitted there. So when I joined that, so now wildlife sciences basically, it is half classroom work and half field based, right? So that was the time I visited quite a few parks. I've gone to Duzwa and Bharatpur and Kaziranga, but I came to Corbett twice. And that's how something, it connected me to Corbett. And I decided that one day I'll come back to Corbett and do some constructive work. And God has been very kind to me. After finishing my master's, wildlife sciences, did my research, my MPhil, and after having spent so much of time in Assam and other forests in other country, I decided to start wildlife tourism in Corbett. And I've been here since 1994. So I've trained almost all the batches of guides there and the drivers there in nature interpretation as well as in interactive skills. It's been 30 years, 30 right? years. Sir, how do you get an interest in environment? Yeah, I told you it was because of that, because of my grandfather being a hunter and मैं उनके साथ आया करता था, मुझे अच्छा लगता था। फिर मैं पढ़ा करता था, जैसे कुहू पढ़ती हैं, आप लोग पढ़ते हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा उस ज़माने में इंटरनेट नहीं था, मटेरियल नहीं था, बट मैंने बहुत कोशिश की कि ये हम 5th of June एज अ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे क्यों मनाते हैं? इसके पीछे क्या रीज़न है? एनवायरनमेंट का क्या मतलब है? टाइगर देखना और टाइगर का फॉरेस्ट देखना या चिड़िया देखना अच्छा है, लेकिन इन सब का एनवायरनमेंट से क्या कनेक्शन है? ह्यूमैनिटी से, मनुष्यता से क्या कनेक्शन है? इसके बारे में मैंने बहुत पढ़ा, बहुत सीखा। तो मेरा इंटरेस्ट तो ये डेवलप हो ही गया था शुरुआत से, बचपन से ही। Sir, how do human needs and conservation go hand in hand? इसी ह्यूमन नीड्स एंड कंजर्वेशन, दैट्स अ वेरी वेरी वैलिड क्वेश्चन। बहुत सालों के बाद किसी ने मुझसे सवाल पूछा है। देखिए, ह्यूमन नीड में क्या है बेसिकली, अब नाउ द टाइम हैज कम व्हेन एवरीवन हैज टू अडॉप्ट दिस थ्योरी ऑफ सिंप्लिसिटी, राइट? सिंपल, यूज ओनली दैट मच व्हिच यू रिक्वायर, यू डोंट नीड टू स्टोर। And then human needs also need to change. There's something called change, which is a continuous process. Now, I'm not against the people who are living on the fringes of these forests and they go to collect firewood and fodder and timber and grasses and all. But now the time has changed. They'll have to bring down their needs because the government has given them free gas connections and all kinds of subsidies and things like that. Why are they still dependent on the fire on the forest, on the firewood? Now there is a process of there's subsidy on the crossbred cows which give more milk. So why can't people keep all their livestock at home and do the stall feeding and get the dung and get the milk and instead of sending them to the forest? It's a free economy and all that. So all those things, the human needs in the present circumstances are definitely going to hurt conservation, and they have already been hurting conservation. Needs बहुत ज़्यादा हैं, demand बहुत ज़्यादा है, productivity बहुत कम है.
Now, if you see, all these forests are just like islands surrounded by human and human supported activities. तो अब ये जो islands हैं, इनसे कितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या-क्या दे पाएँगे हमको, बड़ी पॉपुलेशन उनके ऊपर डिपेंडेंट है। तो उन आइलैंड्स को छोड़ देना चाहिए उनके अपने हाल पे, वो अपने आप दीज़ आर ऑल रिन्यूएबल रिसोर्सेज़ ऑफ एनर्जी। और 2 आइलैंड्स के बीच में हमको एक फॉरेस्ट का कॉरिडोर क्रिएट कर देना चाहिए, so that the connectivity is maintained, the gene pool is transferred from one side to another side, inbreeding depressions are not there। तो ये सब चीज़ें हैं, मतलब अब ये गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से जो एफर्ट कर सकती है करेगी, लेकिन लोगों को भी अपने जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो डिमांड्स हैं, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। एंड देयर इज़ अ थ्योरी कॉल्ड, यू नो, हाउ टू लिव अ सिंपल लाइफ। अब एक कॉलोनी में दिल्ली में आप जाइए तो एवरीबडी हैज़ टू ड्राइव द कार इन दिल्ली ऑन द सेम रोड, राइट? किसी के पास बड़ी फॉर्च्यूनर है, किसी के पास छोटी किया है, किसी के पास उससे भी छोटी सेंट्रो है। काम सबका एक ही है, लेकिन वो स्टेटस सिंबल जो है, मेरे हिसाब से स्टेटस सिंबल तो होना चाहिए आदमी का, कौन कितना दे रहा है, कौन कितना बाँट रहा है। स्टेटस वहाँ से डिसाइड होना चाहिए, बजाय इसके कौन कितना ले रहा है। हो सकता है कि फॉर्च्यूनर वाले ने अपने पैसे से खर्च किया हो, अपने पैसे से उसने गाड़ी की हो, उसने उसने कमाया हो, बट फॉर्च्यूनर चलाना जो है वो इट्स अ बर्डन ऑन अदर्स। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है मेरे ख्याल से। हर एक यंगस्टर को भी स्टेटमेंट को समझना चाहिए, जो आपने अभी बोला। इट्स सच अ ग्रेट थिंग यू सेड राइट नाउ। Sir, how do you stay motivated in your life? When I see young kids like you taking so much of interest in wildlife and environment and conservation, मैं जो आई सी ऑल द गाइड्स हू टेक पीपल इनटू द फॉरेस्ट एंड दे इंटरप्रेट नेचर एंड देन दे शो देम, तो मुझे बड़ा लगता है कि मैं बड़ा मोटिवेटेड हूँ। मेरा मेरा काम जो जो मैं नहीं कर सका वो आप लोग करेंगे। वो कहते हैं कि द यंग जनरेशन इज द जनरेशन ऑफ द कंट्री। तो हम लोग से वी हैव लिव्ड आवर लिव्स, आपके पेरेंट्स ने भी लिख लिया। अब मदर अर्थ को बचाने की जिम्मेदारी तो किसको है? आज की पीढ़ी को, जो आप लोग हैं। तो मुझे देख के जिस तरह का ये आपके स्कूल में आज हो रहा है, मैं इतने साल से हूँ, हालाँकि मैं स्कूल्स में जाता हूँ, कोई मुझे बुलाता है लेक्चर देने के लिए, कोई टाइगर पे, कोई एलिफेंट पे, कोई एनवायरनमेंट पे, कोई कंजर्वेशन पे, इकोलॉजी में जाता हूँ। लेकिन ये मैंने पहली मर्तबा देखा किसी स्कूल के अंदर कि एक एक साइंस का पूरा एक स्टॉल लगे हैं यहाँ से वहाँ तक, और फिर लोगों को बुलाया गया है और जो उनकी फ़ील्ड है उसके बारे में आप लोग सवाल पूछ रहे हैं, और ख़ुद भी आप पढ़ के आए हैं लग रहा है मुझे, सबके पास लिखे हैं सवाल। तो ये मैं आई फील वेरी मोटिवेटेड एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड सैटिस्फाइड एंड ऑल माय बेस्ट विशेस। सर, मेरी क्वेश्चन ये है आपसे, जी। डू यू सी एनी सिमिलैरिटी बिटवीन गॉड एंड नेचर? ये मेरा फेवरेट स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट मैं कई बार दे चुका हूँ, और ये आपको समझना चाहिए। इसके पीछे मैं आपको थोड़ा-सा साइंस की बैकग्राउंड में लेके जाऊँगा, राइट? मैन इज़ एन इनसेन स्पीशीज़। ही worships an invisible God and destroys the visible nature, unaware of the fact that the nature which he is destroying is the same God which he is worshiping। अब ये स्टेटमेंट से क्या समझ में आया कि जो हमारा पर्यावरण है, प्रकृति है, जो हमको दिखाई दे रही है, उसकी तो हम बिल्कुल देखभाल नहीं कर रहे हैं, उसको तो हम ख़त्म कर रहे हैं। अल्लाह, भगवान, ईश्वर, जीसस, वाहेगुरु, कोई भी नाम दे दीजिए, किसी ने देखा थोड़ी है, उसकी हम पूजा कर रहे हैं। और हमको ये पता नहीं वाक़ई ये वही भगवान है जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, जो हमको दिखाई दे रहा है। अब इसके पीछे एक स्टोरी है, विच इज़ अ साइंटिफिक फैक्ट, क्योंकि आपका ये साइंस रिलेटेड चीज़ है। आपने देखा होगा अभी तक हमने मनुष्य ने अपनी डेवलपमेंट के साथ-साथ और सारी टेक्नोलॉजी के साथ-साथ वी हैव सो फार बीन एबल टू डिस्कवर देयर आर 2 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज़म्स ऑन दिस अर्थ। 2 मिलियन का मतलब हो गया 20 लाख। एटमॉस्फेयर में, ओशन, रिवर्स एंड ऑन अर्थ। उसमें हाथी, घोड़ा, तितली, मक्खी, मच्छर, टाइगर, लेपर्ड, सब कुछ मिला के, and a lot of trees also. Out of these 2 million, only the green plants have been blessed by nature to manufacture their own food through the process called photosynthesis। और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास ये सलाहियत नहीं है, ये कैपेबिलिटी कि वो अपना खाना अपने आप बना सके। Everybody else is dependent on each other for the food, but only the green plants can manufacture the food। Now, when the green plants manufacture their food, what exactly happens in photosynthesis? The chlorophyll, which is a green pigment, and sunlight, they blend, and the leaves manufacture the plants, the food. And during the manufacturing of the food, what is given out? Oxygen is released. And what is taken in? What is used as a fuel? Carbon dioxide. Where is the oxygen which the plants are releasing going? And who is producing the carbon dioxide which is absorbed by the plants? About 60% of the total carbon emissions on this earth are contributed to by human and human supported activities. Either it is animal husbandry, or it is burning of the charcoal to produce electricity, or
running the motorcycles and car or running your air conditions and things like that, chlorofluorocarbons कहते हैं ना, carbon monoxide, carbon in different form. तो हमारी लग्जरीज को का जो पोल्यूशन निकल रहा है उसको प्लांट्स इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फूड्स बनाने के लिए, अपना अपना खाना बनाने के लिए, और हमको रिटर्न में क्या दे रहे हैं? ऑक्सीजन. अभी कोविड में क्या हुआ था एग्जैक्टली? कोविड में पीपल वर डाइंग एंड देयर वाज अ ह्यू एंड क्राई, और सब लोग, नेचर ने एक हल्का सा एक्सपेरिमेंट किया कि ऑक्सीजन के सिलेंडर्स के लिए लोग लड़ रहे थे सड़कों पे. तो जो चीज़ हमको फ्री मिल रही थी उसकी हम बिल्कुल देखभाल नहीं कर रहे थे, तो नेचर ने हमको थोड़ा सा वेकअप कॉल दिया. तो एग्जैक्टली वो चीज़ हुआ. जब हम बात करते हैं ह्यूमैनिटी, मनुष्यता, और उसको जब हम गॉड से रिलेट करते हैं, तो मनुष्यता की क्या 3 निशानियाँ हैं? मनुष्यता इस धरती से कब खत्म हो जाएगी? बाप-बेटी, माँ-बेटा, भाई-बहन, ये सारे रिश्ते कब खत्म हो जाएँगे? जब द होल एटमॉस्फेयर विल गेट पॉल्यूटेड. पूरा पॉल्यूशन हो जाएगा. व्हेन देयर इज़ नो ऑक्सीजन टू ब्रीथ इन, व्हेन देयर इज़ नो पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर टू ड्रिंक. वो कहते हैं ना, द थर्ड वर्ल्ड वॉर इज़ गोइंग टू बी ऑन वाटर. तो अब क्या होगा? ये तीनों चीज़ें जो है ह्यूमैनिटी जब खत्म कर देंगी, तो वो उसी का ताल्लुक तो गॉड से है. मतलब भगवान क्या सिखाता है? मनुष्यता सिखाता है ना. मनुष्यता कहाँ से आ रही है? फॉरेस्ट से आ रही है. कौन से फॉरेस्ट? जो फॉरेस्ट भगवान ने, नेचर ने खुद लगाए. हम लोग क्या लगाते हैं? तो क्रॉप फील्ड्स हैं, कहीं बागीचा लगा दिया आम का, कहीं अमरूद लगा दिया, कहीं रोड साइड प्लांटेशन कर दिया, कहीं रेलवे ट्रैक के पास प्लांटेशन कर दिया. बट द फॉरेस्ट विच वाज प्लांटेड एंड डिजाइन्ड बाय नेचर इटसेल्फ, कि कौन सा पेड़ कहाँ आना चाहिए, स्लोप पे कौन सा पेड़ आएगा, क्लाइम पे कौन सा पेड़ आएगा, रिवर के सारे कौन सा पेड़ आएगा, डेजर्ट में कौन सा पेड़ आएगा, ये फॉरेस्ट किसने प्लान किया? ये नेचर ने. उन फॉरेस्ट में और हमारे लगाए हुए फॉरेस्ट में अंतर ये है कि उनकी ऑक्सीजन प्रोडक्शन कैपेसिटीज जो हैं वो लगभग 700 साढ़े 700 टाइम्स ज़्यादा हैं कंपेयर टू द प्लांट्स विच वी प्लांट, राइट. इसी तरीके से जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन वाला कॉन्सेप्ट है, वो उनका 400 गुना ज़्यादा है हमारे लगाए हुए प्लांट से. तो आप देखें कि अब नेचुरली इवॉल्व फॉरेस्ट का क्या रोल हो गया. और ये नेचुरली इवॉल्व फॉरेस्ट जो हैं, ये भगवान का रूप है नहीं, ठीक है. अब इनको भी कोई ना कोई कंट्रोल करने वाला चाहिए, ठीक है. और इनको कंट्रोल करने वाला कौन है? टाइगर, द प्राइमरी कंज्यूमर्स इनको बोलते हैं हम. इफ यू मेक अ फूड पिरामिड इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम, एट द बेस यू हैव डिकम्पोजर्स. डिकम्पोजर के ऊपर आपके हो गए कौन? ऑटोट्रॉफ्स इनको कहते हैं हम, जो कि अपना खाना अपने आप बना सकते हैं, ग्रीन प्लांट्स. ऑटोट्रॉफ्स को कौन कंट्रोल करता है? द प्राइमरी कंज्यूमर, चाहे डियर, जो जितने भी हर्बीवोर्स हैं. और ऑटोट्रॉफ, उनको प्राइमरी कंज्यूमर को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है? सेकेंडरी कंज्यूमर, व्हिच इज टाइगर या लेपर्ड या लायन या जैगुआर या प्यूमा या माउंटेन लायन, जितनी बड़ी कैट्स हैं. कहीं पे वुल्व्स टॉप प्रेडेटर्स हैं. अब देखिए पूरा एक सिस्टम चला रहा है. अगर आपको याद हो, व्हाट वाज द बिगेस्ट डिस्कवरी ऑफ द लास्ट सेंचुरी? दैट वाज द डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन थ्रू नेचुरल सिलेक्शन. तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या देखें कैसे नेचुरल सिलेक्शन काम करता है. इट इज ऑलवेज द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. तो वो वहाँ काम करता है. टाइगर जो है वो टाइगर कैन ओनली कैप्चर द वीकेस्ट ऑफ द डियर इन द पॉपुलेशन. तो द पॉपुलेशन इज इम्प्रूविंग, इट इज बिकमिंग हेल्दियर एंड हेल्दियर. डियर की हेल्दी डियर पॉपुलेशन इज एक्चुअली मेंटेनिंग दैट फॉरेस्ट का जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, और वो जो है हमको दे रहा है ऑक्सीजन, वो कर रहा है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन. और वाटर साइकिल अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट का रूल आता है. द अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट कवर डिसाइड द परसेंटेज ऑफ प्रेसिपिटेशन योर एरिया इज गोइंग टू हैव. सब थोड़ा क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं. जैसे कि कोरल रीफ्स आप देखें तो हमने ये अभी जाना था कि अगर थोड़ा सा भी, अगर वहाँ के पानी में, या जो सी है, जो ओशियन है, अगर वहाँ के पानी में थोड़ा सा भी चेंज आएगा टेम्परेचर में, तो पूरी कोरल रीफ जो है वो पूरी तरीके से हट जाएंगी, वैनिश हो जाएंगी. और जैसे अभी हम अपने आसपास ही देखते हैं, जैसे बुरास के बारे में अगर हम देखें तो वो समय से पहले ही खिल जा रहे हैं, उतनी शाइन भी नहीं है. तो ये जो क्लाइमेट चेंज है, इसकी क्रिटिकल इश्यूज क्या हो सकते बट क्लाइमेट चेंज का एक सबसे बड़ा तो इशू ये है कि अगर आप देखें तो अगर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है, तो द ग्लेशियर्स विल मेल्ट और ओशन लेवल्स विल गो हायर. कई आइलैंड जो हैं वो डूब जाएंगे. कहते हैं ना, मालदीव्स एंड मॉरिशस विल ड्राउन वन डे. आज का टेम्परेचर, अगर आज टेम्परेचर में 2 डिग्री सेंटीग्रेड फर्क आता है, तो इसी हमारी एयर कंडीशनिंग कितनी हो जाएगी. जितने ज़्यादा एयर कंडीशनिंग करेंगे या फ्रिजेस करेंगे, उतने ज़्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स पैदा होंगे, उतने ज़्यादा ओजोन लेयर
के खराब होने के चांसेस हो चुके हैं, ओजोन लेयर में तो हो चुके हैं। मैं आपको याद दिलाऊं एक चीज़, हम सब बनाते हैं, सारे स्कूल से बनता है ना 5th of June एज अ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। इसकी बड़ी पीछे हिस्ट्री है, बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। ऑन द 5th of June in 1970 कुछ साइंटिस्ट या कुछ लोग जो कि दे वर द गुड समरिटन्स ऑफ द वर्ल्ड, दे सैट अक्रॉस अ टेबल। स्टॉकहोम में एक हॉल, इसका नाम है सिटी हॉल, जहाँ से नोबेल प्राइज आज भी अनाउंस होता है फॉर डिफरेंट स्ट्रीम्स। नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, फॉर ह्यूमैनिटी, फॉर फिजिक्स, फॉर केमिस्ट्री, ठीक है। वहाँ बैठ के इन लोगों ने एक मीटिंग करी और उन्होंने कहा कि भाई ओजोन लेयर में होल हो चुके हैं, स्किन कैंसर के खतरे हैं, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब 1970 में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज लाइक अस, possibly 75% several countries had absolutely no idea about environment का या climate change का या ओजोन लेयर में। अब वो इतनी इंटरेस्टिंग मीटिंग हो गई कि उसमें जो अच्छे लीडर्स थे, अच्छी कंट्रीज के, उन्होंने इमीडिएटली पार्टिसिपेट किया। नहीं नहीं, वी नीड टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। तो 150 प्लस कंट्रीज टुक द प्लेस टू सेव द एनवायरनमेंट ऑफ द कंट्रीज। तो इंडिया ने भी बड़ा लीड में जाके वो कहा कि नहीं हम भी करेंगे। तो जब वो हुआ तो उन्होंने कहा कि साहब आपको, इफ यू वांट टू नो द हेल्थ ऑफ योर इकोसिस्टम ऑफ योर एनवायरनमेंट, यू नीड टू काउंट द टॉप प्रेडेटर्स ऑफ द इको, एंड द टॉप प्रेडेटर्स ऑफ द इकोसिस्टम नॉट अंबानीज और अडानीज। अमीर लोग या गरीब लोग जो हैं वो दे आर नॉट द प्रेडेटर्स। उन्होंने कहा कि योर टॉप प्रेडेटर इज टाइगर, प्लीज काउंट द टाइगर्स। नाउ व्हेन वी काउंटेड द टाइगर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, ऑल्दो वी डिड नॉट हैव एनी मेथड टू काउंट देम, तो वो सब उस ज़माने में 1800 टाइगर निकले। ये टाइगर का एक इतना बड़ा ऑरा है, द बिगेस्ट ऑफ ऑल द कैट, द मोस्ट मैजेस्टिक, द सॉलिटरी, द मोस्ट टेरिटोरियल, मतलब अपने आप में देखने में। इसी वजह से दुर्गा ने उसको अपना शक्ति का प्रतीक है, दुर्गा माय गॉडेस, उसको वाहन बनाया अपना। लक्ष्मी जी का वाहन कौन है? आउल, ठीक है, ठीक है। इस तरह से विष्णु जी का क्या है? विष्णु जी का गरुड़, विच इज कॉल्ड। अच्छा, तो दुर्गा को वाहन बनाया, मतलब ये शक्ति का प्रतीक है ना टाइगर। अब ये जब न्यूज़ बाहर वर्ल्ड में पहुंची कि साहब ये तो खाली 1800 टाइगर बचे हैं, हालांकि कोई मेथड नहीं था, कुछ नहीं था, वैसे ही एक रफ एस्टिमेट लिया गया, तो पूरा पूरा वर्ल्ड जो है वो हिल गया और कहा नहीं नहीं यार, नीड टू सेव द टाइगर। तो उस जमाने में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था 1973, 1 अप्रैल 1973 प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था। हमको कैसे पता चला? हमने अपने इन्वायरमेंट के बारे में जाना, तब पता चला टाइगर के बारे में। तब उन्होंने कहा कि सबसे पहले टाइगर बचाओ। अगर टाइगर का नंबर इज डूइंग ऑल राइट, तो आपका एनवायरनमेंट सही है। और एनवायरनमेंट सही है इसका मतलब आपको पीने का पानी मिल रहा है, आपका कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ठीक हो रहा है, आपके पास ऑक्सीजन सप्लाई अच्छी है। या इसी वजह से देखें आज की तारीख में कहीं पर भी कोई फंक्शन होता है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोई मंत्री, कोई डीएम, पेड़ लगाना, राइट? पेड़ लगाना, और पेड़ को लगाने के बाद उसको बड़ा करना, और बड़ा करके उसको एक ऐसी एज में लेके आना जहाँ से वो खुद सर्वाइव कर जाए, कोई अगर ना देखभाल करे उसकी। तो ये पेड़ लगाने का अवसर सब जगह है ना, हर जगह पेड़ लगते हैं, एनवायरनमेंट डे पे भी पेड़ लगते हैं। तो ये सब आपस में इंटरलिंक्ड है। That's such a great concept. So this was our time with him, and sir, we really enjoyed talking to you. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच टू। एंड व्हाट्स योर गुड नेम बेटा? Ankita. अंकिता। एंड सर हम चाहेंगे कि आप आते रहे हमारे पर, बिल्कुल जो राइट करते रहे। सर द लास्ट जस्ट आप एक मैसेज दे दीजिए छोटा सा यूथ को, आप क्या देना चाहेंगे फॉर द यंगर जनरेशन आप? आई वुड से, जो काम आपके पेरेंट्स नहीं कर सके वो अब आप कीजिए टू सेव द मदर अर्थ। लिमिट योर रिक्वायरमेंट्स, लिव द लाइफ ऑफ सिंप्लिसिटी। देयर इज नो पॉइंट शोइंग ऑफ, देयर इज नो पॉइंट, नो। जापान के बारे में सुना? पूरी दुनिया के लिए कार बनाते हैं वो, ठीक है। टोयोटा, होंडा, सुजुकी, खुद साइकिल पे चलते हैं, एंड दे लिव फॉर 100 years। दिस इज द लाइफ ऑफ सिंप्लिसिटी। कितनी रिक्वायरमेंट है? सेव द एनवायरनमेंट, सेव द फॉरेस्ट, सेव वाटर। Whenever you don't need any fan or light, please switch it off. Electricity saved is electricity produced. जैसे save water, उतना ही यूज़ कीजिए जितना कि आपको ज़रूरत है। डोंट एंड पेड़ लगाइए। मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया कि पेड़ से ह्यूमैनिटी का क्या कॉन्सेप्ट है। पेड़ लगाइए जहाँ मौका लगे। हो गया भाई?